हेलो एवरीवन एंड वेरी वार्म वेलकम टू द लिंग्विस्ट सिंपल इंग्लिश फॉर ऑल। सबका बहुत बहुत स्वागत है द लिंग्विस्ट सिंपल इंग्लिश फॉर ऑल में। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स इन इंग्लिश लैंग्वेज, डू एंड डस। आज हम इंग्लिश के सबसे पावरफुल हेल्पिंग वर्ब्स समझते हैं, डू और डस। व्हाई आर दे सो इंपॉर्टेंट? Because they are like superheroes. They help us make negative sentences and ask questions correctly. इनके बिना आप ना तो आसानी से सवाल पूछ सकते हैं, ना ही नेगेटिव या नकारात्मक सेंटेंस बना सकते हैं। Understanding them is the key to speaking fluent and correct English. We will master their uses in simple present tense, sentences with have and has, sentences with have to and has to. So are you ready? Let's begin. Part 2. The golden rule of do versus does. First things first, let's learn the most basic and the most important rule. सबसे पहले और सबसे जरूरी नियम, when do we use do and when do we use does? It all depends on the subject of the sentence. Subject यानी कर्ता, जो काम कर रहा है। The rule is very simple. We use do with these subjects. Do के subjects हैं I, you, we, they और plural nouns जैसे कि students, people, children, cars, एक से ज्यादा लोग या चीजें। When do you use does? We use does with these subjects. Does के subjects हैं he, she, it, कोई भी नाम जैसे कि रिया, राहुल एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सिंगुलर नाउन्स लाइक स्टूडेंट, कोई भी नाम जैसे रिया, राहुल एक्सेट्रा, माय मदर, कोई भी एक इंसान या चीज। दिस इज द गोल्डन रूल। बस इस एक रूल को आप याद कर लीजिए, आगे सब कुछ आसान हो जाएगा। Now let's see how this works in real sentences. Part 3 में हम जानेंगे simple present tense, उसके questions और उसके negatives और interrogatives कैसे बनाते हैं do और does के साथ। In simple present tense, do and does appear only when we make a question or negative sentence. Positive sentence में ये छुपे रहते हैं। Let's take a positive sentence. You play cricket. आप क्रिकेट खेलते हैं। To make it a question, we simply add do at the beginning. जैसे कि Do you play cricket? क्या आप क्रिकेट खेलते हैं? Now for the important part. Let's take another sentence. He plays cricket. वो क्रिकेट खेलता है। To make this a question, we add does at the beginning. Why? Because the subject is he. But there is one very important change. यहाँ बहुत ध्यान से समझिएगा। When you use does, वर्ब में से s निकल जाएगा। दिस इज द रूल। लेट मी एक्सप्लेन यू विद एन एग्जांपल। जैसे कि पॉजिटिव सेंटेंस है ही प्लेज क्रिकेट, क्वेश्चन रहेगा डज ही प्ले क्रिकेट। यहाँ पे प्लेज जो है वो प्ले हो जाएगा, द प्लेज बिकम्स प्ले। इनकरेक्ट सेंटेंस होगा डज ही प्लेज क्रिकेट। ये गलती हमें बिल्कुल नहीं करनी है। मेकिंग नेगेटिव सेंटेंसेस, द लॉजिक इज एग्जैक्टली द सेम फॉर नेगेटिव सेंटेंसेस। फॉर आई, यू, वी, दे, वी यूज डू नॉट और डोंट। I does not, we does not, they does not, ये सारे बिल्कुल गलत है। For example, they like pizza, they do not like pizza, ये होगा नेगेटिव सेंटेंस। और they don't like pizza, हम do not या don't दोनों में से कोई भी एक यूज कर सकते हैं। For he, she, it, we use does not or doesn't, and again the main verb return to its base form. यहाँ he do not, she do not, it do not नहीं कह सकते। For example, she likes pizza, she does not like pizza, not she does not likes pizza, ये बिल्कुल गलत होगा। देखा आपने, जैसे ही does आया likes का s हट गया और वो like बन गया। वैसे आप इस वीडियो को like नहीं किए हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। पार्ट नंबर 4, हैंडलिंग have and has। ये have and has जो है पोजेशन बताने के लिए होते हैं। पोजेशन मतलब किसी का अधिकार या संपत्ति होता है। Now this is where most learners get confused. यहाँ पर सबसे ज्यादा confusion होता है। How do we make negatives and questions for sentences like she has a car? The answer is our superhero does. Here has is the main verb. The rule is exactly the same. When we use does, the main verb has must be changed to have और यही रूल है। We use has with he, she, it, he have या she have या it have हम नहीं बोल सकते हैं। It will be grammatically incorrect. For example, he has a new phone, मतलब उसके पास एक नया फोन है। ये पॉजिटिव सेंटेंस है। He does not have a new phone। देखा, does जैसे ही आता है has बदलकर have हो जाता है। ये नेगेटिव सेंटेंस है। इंटरोगेटिव सेंटेंस के लिए does he have a new phone, यहाँ भी has बन गया है have। क्यों? क्योंकि वहां पे does आ चुका है। इसका मतलब ये होगा क्या उसके पास एक नया फोन है? People often make this mistake. He has not a phone. Now this is an incorrect sentence. The correct way is to use does not have. Now let us understand about have.
हैव हम लोग सब्जेक्ट्स आई, यू, वी और दे के साथ यूज करते हैं. दिस वन इज इजियर. द वर्ब फॉर्म डजंट चेंज. यहाँ पे वर्ब फॉर्म बिल्कुल चेंज नहीं होगा. मतलब आई हैज या यू हैज या वी हैज या दे हैज हम कभी भी नहीं यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, वी हैव अ कार, हमारे पास कार है. नेगेटिव होगा वी डू नॉट हैव अ कार, हमारे पास कार नहीं है. क्वेश्चन फॉर्म में बनाना होगा, या अगर आपको इंटरोगेटिव बनाना है तो आप बोलोगे डू वी हैव अ कार, क्या हमारे पास कार है. पार्ट 5, हैंडिंग हैव टू एंड हैज टू. The final step is understanding have to and has to. इनका मतलब होता है कुछ करना पड़ता है या कुछ करना जरूरी है. The logic is 100% identical to what we just learned with have and has. जैसे हमने has और have के बारे में सीखा, सेम उसी तरह से has to और have to सीखेंगे. Now let's understand how to use has to. Has to आपको he, she, it या कोई भी एक सिंगल नाम के साथ यूज करना है. जैसे कि पॉजिटिव एग्जांपल है, she has to go to the office. उसे ऑफिस जाना है. नेगेटिव सेंटेंस होगा she does not have to go to the office. फिर से देखिए, does के आते ही has तो बदल गया have to में. क्वेश्चन अगर बनाना है या इंटरोगेटिव बनाना है, does she have to go to the office? क्या उसे ऑफिस नहीं जाना है? अभी जानते हैं have to के बारे में. उसके सब्जेक्ट्स है I, you, we और they. सेम स्ट्रेटजी हमें यूज करना है यहाँ पे. पॉजिटिव सेंटेंस होगा you have to complete the homework. नेगेटिव सेंटेंस होगा you do not have to complete the homework. और इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा do you have to complete the homework? देखा, एक बार आपने मेन रूल समझ लिया तो वो हर जगह अप्लाई होता है. पार्ट 6, रिवीजन. चलिए एक बार जल्दी से सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को रिवाइज कर लेते हैं. लेट्स क्विकली रिवाइज द 3 मेन रूल्स. नंबर 1, सब्जेक्ट इज इंपॉर्टेंट. यूज डज फॉर ही, शी, इट एंड सिंगुलर नाउन्स. यूज डू फॉर एवरीवन एल्स लाइक आई, you, we, they and plural nouns. सब्जेक्ट जैसा हो उसी के साथ do या does आप यूज करेंगे. Number 2, helpers for questions and negatives. They are essential for making questions and negative sentences in the simple present tense. Number 3, the base form rule. ये सबसे important rule है. When you use does, the main verb always return to its original base form. Sentence में does के यूज करने से goes हो जाएगा go, plays हो जाएगा play और has हो जाएगा have और has to हो जाएगा have to. Practice these rules and your English will sound much more natural and correct. I hope ये concepts अब बिल्कुल clear होंगे. Thank you for watching. Please like and subscribe. Bye bye. Take care.